Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. Hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Students, as you know that we are doing exercises of unit number 2, that is My Natural Beauty of Pakistan, and we have read we recited the poem My Blessed Beautiful Land. Today we are doing exercise number 6. It is on page number, as you can see, page number 26. Okay, these are some questions that you will have to first we will discuss all the answer of these questions, and then you will have to write the answers in your notebook. Okay, as you know that this is a poem, My Blessed Beautiful Land, discussing the main features, the 4 provinces of Pakistan, their features, and about their people living there. So let's begin with the question answer. Exercise number 6. Work in pairs and orally discuss the following questions, then write the answers in your notebook. So we have a first question. Is the poet proud of her country? How do we know that? As you know that the poet is anonymous. We do not know who wrote this poem, whether he is he or she, कि वो the poet थे या poetess थी. So the in the book it is given his or her. So but we will take he as we will consider that the poet is male. Okay, so what will be the answer of this question? Is the poet proud of his country? How do we know that? क्या आपको पता है कि आप अपने country पे उसको फ़ख्र है? He loves his country, yes or no? आपको पहले इसका आंसर देना होगा, and then आपको कैसे मालूम आए कि पोइट जो है वो अपनी कंट्री पे प्राउड हैं, बहुत ही बिलव कंट्री है उनके लिए ये. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. As you know, as you notice that this is what type of question is it? This is the question that is yes or no question. Okay, because it start with the auxiliary verb is आपको पहले yes or no में इसका आंसर देना है, और फिर उसका रीज़न उसको जो है वो उसके रीज़न को एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों अपने कंट्री पे प्राउड करते थे. सो what will be the answer? Yes, I think the poet the poet is a Pakistani and proud of his country. And how do we know that? Because कैसे हमें पता चला? इसका पता चला कि because he admires, he shows his affection, or he shows his love to his country by highlighting the important facts and features and beautiful features of his country. Okay, अपने पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ इलाक़ों के मुख्तलिफ रीजन्स के फीचर्स को डिस्कस किया. उसके अलावा जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में बताया. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप ये आंसर अपनी कॉपी में खुद ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी लर्न अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन दिस पोम? एट लीस्ट 2 अदर क्वालिटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट आर नॉट मैंशन्ड हेयर. आपको जो है पहले तो ये बताना है कि आपने इसमें जो पाकिस्तानी पीपल हैं, जो ड्वेलर्स हैं यहाँ के, उनके बारे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ पढ़ी हैं. उसके अलावा 2 और कोई क्वालिटीज़ बतानी है जो पाकिस्तानी पीपल को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर द आंसर? तो आप कैसे लिखेंगे? आप ये लिखेंगे इन दिस फॉर्म. द पोएट मेंशन द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट दे आर fearless, simple, brave, and resourceful. Okay, these are the qualities that are mentioned. और इसके अलावा जो qualities हैं that can जो represent करेंगी, जो बताएंगी पाकिस्तानी people के बारे में, तो आप क्या लिख सकते हैं कि they are also hard working and hospitable, या enthusiastic भी लिख सकते हैं. Okay, आपका ये हो जाएगा आंसर नंबर 2, जिसमें आप सबसे पहले वो क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको पोम में बताई हैं, और देन यू विल डिस्कस 2 अदर क्वालिटीज़ of the people of Pakistan. Now come to the third question. What is third question? Write a paragraph about your province. Use the information given in the poem and add some more points. आपको जो है अपने in which province you live, as you know, it is understood that you live in Sindh. Your province name is Sindh. आप सिंध में रहते हैं. आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, लिखनी है. जो कुछ इन्फॉर्मेशन आप जो है वो पोम में से लेंगे, and you can add more details. अपनी तरफ से भी आप अपने जो प्रोविंस है उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ और भी पॉइंट्स. ओके,
Let's come to page number 21. The last stanza tells about the province of Sindh. आपको जो है प्रोविंस ऑफ सिंध के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है, डिस्कस मैनी टाइम्स, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. एंड व्हाट इज़ द रिवर, द मेन रिवर जो है यहाँ जो सिंध का जो है वो नेम्ड रिवर इंडस है. एंड इट इज़ एज यू नो दैट दिस प्रोविंस इज़ फेमस फॉर इज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की वजह से ये बहुत फेमस है. ओके स्टूडेंट, आपको ये जो मैं पॉइंट्स अब बताने जा रही हूँ दैट यू विल राइट इन योर आंसर. आप उसको गौर से सुनिए. मैं वर्बली बता रही हूँ, ओरली बता रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ऑन द वाइट बोर्ड. मैं कोई चीज़ नहीं लिखूंगी बिकॉज मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस, हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. समरी में भी मैंने बहुत आपको डिटेल में बताया है. सो इट्स नाउ इट्स योर टर्न कि आप ये आपकी बारी है कि अब आप जो है वो इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर, अपना आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ माई प्रोविंस इज सिंध. Yes, Sindh is my province. The province in which I am living is Sindh. Whatever you want to write, then it is famous for its oldest civilization named Mohenjo-daro. And I told you what is the meaning of Mohenjo-daro. आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा. Mohenjo-daro means mound of dead. और जो है उसके बाद जो है आप ये भी बता सकते हैं द रिवर इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोज हियर. एंड दिस प्रोविंस इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ सेंट्स है. और यहाँ के जो बिगेस्ट सिटीज़ हैं वो कौन कौन से, बिगेस्ट और फेमस सिटीज़ कौन कौन से हैं आपको पता है. कराची तो सबसे बिगेस्ट है और इसका कैपिटल भी कहलाता है. ठीक है, कराची इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध. एंड लाड़काना है, सक्कर है, शिकारपुर हैं, ये इनके कुछ फेमस सिटीज़ हैं. और उसके बाद इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि दिस प्रोविंस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स सी पोर्ट. ठीक है, सी पोर्ट की वजह से इस प्रोविंस की जो है वो अहमियत बहुत ज़्यादा है. एंड द पीपल, हाउ द पीपल ऑफ सिंध आर, दे आर सिंसियर एंड रिसोर्सफुल. दे आर फेमस फॉर दियर सिंसियरिटी, उनकी अपनी सिंसियरिटी की वजह से और रिसोर्सफुल होने की वजह से दे आर नोन अमंग ऑल द प्रोविंसेस थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, सो दिस कुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर होगा. आप अपनी प्रोविंस के बारे में लिखेंगे. होपफुली यू हैव लिसन्ड whatever I said to you carefully. Now we have come to the last question. Now come to the question number 4. Write about one more province of Pakistan that you would like to visit. Support your answer with reason. आपको जो है एक प्रोविंस के बारे में बताना है जो आपको बहुत पसंद है. बिकॉज वी आर लिविंग इन सिंध, दिस इज़ आवर प्रोविंस. लेकिन हम जो है वो दूसरे प्रोविंस को भी विज़िट करना चाहते हैं. तो जिस प्रोविंस को आप विज़िट करना चाहते हैं आप उसके बारे में, उसके कुछ फीचर्स और कुछ उसके बारे में आपको लिखना होगा. एंड वाई यू वुड लाइक टू विज़िट, आप क्यों उसको विज़िट करना चाहते हैं. तो द प्रोविंस आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इज़ दिस इज़ खैबर पख्तूनख्वा विच इज़ फॉर्मरली कॉल्ड, जिसको पहले क्या कहा जाता था, NWFP. व्हाट इज़ NWFP? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट कहा जाता था. और क्यों मैं वहाँ का विज़िट करना चाहती हूँ, आई एम गिविंग यू सम रीजंस to visit this province. So how you are going to write the answer? I would like to visit Khyber Pakhtunkhwa because it has mesmerizing, enchanting, spellbinding beauty due to the lofty mountains. हैं वहाँ पर क्या है, there are mountains, high mountains हैं that are covered with snow. There are snow-capped mountains and यहाँ पर जो है वो the Karakoram and Hindu Kush present the splendid sight for nature lovers. और यहाँ के जो दो mountain ranges हैं they present a splendid या sight seeing या word seeing हैं places हैं. और that is these are the such a beautiful places for the nature lovers के लिए. इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है famous trade route है. What is the famous trade route? The famous trade route is Khyber Pass. The Khyber Pass is a famous trade route and it is well known trade route. यहाँ पर अभी भी trading होती है through this pass. और यहाँ पर जो है द वैलीज और वर्ड सीइंग, यहाँ की जो वादियाँ हैं बहुत ही वर्ड सीइंग है, देखने के काबिल है. द रिवर्स आर सिल्वरी लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं. देयर आर waterfalls and silvery lakes and this province is enriched with dry fruits and juicy fruits. और यहाँ पर जो ज़्यादातर जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो ज़्यादातर जो है हमारे पास यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स वगैरह यहाँ पर बहुत ग्रो होते हैं. एंड देयर आर जूसी फ्रूट्स लाइक पीचेस और एप्पल, ये वाले फ्रूट्स और ग्रेप्स है, ये बहुत ग्रो किए जाते हैं. द पीपल ऑफ APK या खैबर पख्तूनख्वा आर सिंपल बट
ब्रेव, लेकिन सिंपल तो हैं लेकिन बहुत ही ब्रेव भी हैं. दे आर ऑल्सो हॉस्पिटेबल इन नेचर एंड दे ऑलवेज ग्रीट देयर गेस्ट विद ओपन आर्म्स. और हमेशा जो है ये अपने गेस्ट को कैसे वेलकम करते हैं, दे ऑलवेज वेलकम देयर गेस्ट विद ओपन आर्म, विद बहुत ही जो है वार्मली जो है वो उनको वेलकम करते हैं. तो होपफुली यू हैव लिसन वट एवर आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा. ठीक है, जो मैं विज़िट करना चाहती हूँ आप अपनी, इट इज़ अप टू यू कि आप पंजाब विज़िट कर लें, आप पंजाब का लिख लीजिए या आप जो है वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान का लिख लीजिए. वट एवर, इट इज़ टोटली अप टू यू. आपको जो है ये काम अपनी कॉपी भी करना है. यू विल हैव टू राइट द हेडिंग, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस की आप हेडिंग डालेंगे. उसके बाद ये जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, यू विल to write the answers of these questions correctly. So this is for today. What is your homework? Okay, what is your homework? Your homework is to solve exercise number 6, which is on page number 26 in your notebook. Okay, students, hopefully you will do it. You can do it easily. This inshallah taala we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.